वो लिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिया इंटरेस्ट ही नहीं wasn't that difficult थोड़ा कैलकुलेशंस था बाकी कुछ नहीं था चलो अभी मेरे को उसका फोटो भेजो ना क्या नाम है अरे यार चाहिए ऋषभ पेपर भेजना फोटो भेज क्या इधर पेज पड़ा था फुल स्केप था ना तुमको चाहिए क्या राजन अभी पहले होमवर्क ले लो फटाफट होमवर्क सब चेक कर लो स्टेटमेंट था ना स्टेटमेंट एक का था ये पूरा मतलब सच में नहीं आया देखो अगर आपको होमवर्क नहीं आया ना तो इतनी बुरी बात नहीं है बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और अगर आया है ये खुद से तो सुपर नेक्स्ट लेवल चलो सम नंबर 25 that was for homework hope you all have tried at least so 25 sum स्टार मार्क करके रखना देखो Moon Limited keeps no stocks record but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter and the valuation is taken at cost. The company's year ends on 30th September 2006. The draft accounts have been prepared on that date. The stock inventory taken on 30th September 06 was however mislaid and you have been advised to value the closing stock on 30th September 06 with the stock figures on 30th June 06 after taking into account the following information. So basically आपका जो physical stock है वो कौन सी तारीख का है तो इट इज 30th June 06 का and that amount came to 80,000 okay and with the help of this 30th June ka physical stock you are supposed to arrive at the ownership stock on 30th of September. Okay, now let's see who got it all correct. See, on 30th June, B point ध्यान से पढ़ना. On 30th June, by the way, this question came in ICAI का mock test, that is prelim. The same question. It was 4 years back. On 30th June, stock sheets showed the following discrepancies. A page total of 5,000 had been carried forward to the summary as 6,000. So can I say it has been overcast? So what am I supposed to do? Less stock sheet overcast. How much? 1,000. तो ये तो मैं कम कर दूंगा. सही बात? The total of a page had been undercasted by 200. So page total has been undercasted, so I am supposed to what? 200. Add it up. 200 I will add. ये दोनों items clear है सबको? Then the invoice of purchase entered in the purchase book during the months from July to September 2006 totaled 70,000. Of this, 3,000 related to the goods received prior to 30th June 06. Invoices entered in October 2006 relating to the goods received in September 2006 totaled 4,000. Abhi on the face of it, it might look
like all those are just subdivision of purchase. What are the total purchases? 70,000. So शायद ऐसा लगेगा कि 70 में से 3,000 अलग है, 4,000 अलग है और 63,000 अलग है, बट ऐसा नहीं है. नहीं, सब अलग भी नहीं. 3,000 उसका पार्ट है 4,000. 3,000 उसका पार्ट है, 4,000 अलग है. कैसे पता चल रहा है? What's your- This लिखा है, of this पार्ट है, बाकी का नहीं. हाँ नहीं, और एक बड़ा सा हिंट है वहां पे, पढ़ो तो क्लिक पूरा 70,000 का इनवॉइस साथ में और फिर बाकी का नहीं. इनवॉइस देखो, पहले लाइन पे क्या दिया हुआ है, वहां पे आपको दिया हुआ है बी सी पॉइंट पे इनवॉइस, अंडरलाइन दैट. Invoice of purchase entered in the purchase book during the months of July to September. तो जुलाई टू सितंबर में आपने कितने के इनवॉइसेस एंटर किए हैं? 70,000. बराबर है. ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू द गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 30th of June. तो वो तो उसके अंदर ही है. फिर आगे बढ़ो. इनवॉइसेस एंटर्ड इन October 06 amounted to, for the goods received in September, total 4,000. Invoices entered in October 06. Can they be a part of invoices entered between July to September? Possible ही नहीं है. कैसे हो सकता है? जुलाई टू सितंबर में कितने इनवॉइस एंटर किए हैं? 70,000. और जो आगे वाला स्टेटमेंट बोल रहा है वो तो इनवॉइसेस एंटर्ड इन अक्टूबर दिया हुआ है, तो वो जुलाई टू सितंबर का हिस्सा हो ही नहीं सकता, तो वो अलग है. तो बेसिकली 70 और 3,000 इंक्लूडेड है, मतलब इट इज 67, 3 and 4 दैट वे. 67,000, 3,000 and 4,000. So working note 1 for purchases 67, 3,000 and 4,000. Let's take them individually. What about this 67,000? इसका इनवॉइस तो जुलाई टू सितंबर के बीच में एंटर हुआ, वो तो क्वेश्चन में दिया है. एंड इसका गुड्स भी कब आया होगा पता है? जुलाई टू सितंबर के बीच में. तो इसका फिजिकल स्टॉक भी जुलाई टू सितंबर के बीच में ही आया. तो इसका इनवॉइस भी जुलाई टू सितंबर के बीच में है, इसका माल भी जुलाई टू सितंबर के बीच में है. तो आर वी द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 30th September? यस. आ गया ना इनवॉइस या माल जो भी पहले आया, हम तो ओनर बन गए. Were these goods in the physical inventory on 30th June? No. So what am I supposed to do? Add. ये अपना नॉर्मल परचेज हो गया 67. ये सॉर्टेड है सबको. जुलाई से सितंबर के बीच में आए ना, हम लोग को सितंबर की ओनरशिप देखा, तो हम लोग ओनर हैं और जून को माल नहीं होगा. ओके. व्हाट अबाउट दिस 3,000? इसका भी है ना इनवॉइस जुलाई टू सितंबर के बीच में आया, दैट्स फॉर श्योर. बट इसके बारे में क्या दिया? फॉर द गुड्स दैट वर रिसीव्ड इन जून, प्रायर टू जून, राइट? तो जून से पहले माल आ चुका है, तो इसका फिजिकल स्टॉक कब आ चुका है? आपका जून में आ चुका है. तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 30th September? यस. वर दिस गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 30th June? यस. तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो इफेक्ट. नो इफेक्ट क्यों? क्योंकि वी आर द ओनर एंड द गुड्स आर इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो नोट में चला जाएगा. फर्क समझ में आया? तो इसका कुछ इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. तो दिस विल बी नो एंट्री, इट विल गो इन नोट. नाउ टेक अ लुक एट दिस गाय. ये 4,000 वाला जो सीन है, इसका इनवॉइस कब आया पता आपको? हाँ जी, अक्टूबर में. इसका इनवॉइस आपको अक्टूबर में है. ओके. बट इसका माल प्रायर टू सितंबर दिया हुआ है ना, तो इसका माल कब आया होगा? फिजिकल स्टॉक बनने का आया है जुलाई टू सितंबर के बीच में, बेसिकली सितंबर में. इस सितंबर में आ गया. प्रायर टू सितंबर क्या है? सितंबर ही दिया. तो बेसिकली स्टॉक आपका सितंबर में आ चुका है. So are we the owner of these goods as on 30th September? Yes, because माल या इनवॉइस जो पहले आ जाए ओनरशिप आ जाती है. Were these goods in the physical inventory of June? No, because सितंबर में माल आया है. So this also we are supposed to add. ये दोनों परचेज साथ में दिखा सकते हो आप. 4,000. Okay.
इसका नोट में क्या लिखना है? नोट आता है आपको? We are the owner and the goods were also in stock. Hence note. We are the owner and the goods were also in stock. ये किसको मिला? खुद से। खाली 3000 में मिस्टेक हो तो वरना ऐड वो बराबर। वही तो था। अभी नेक्स्ट वाले में देखो, डी वाला पढ़ो। सेल्स इनवॉइस्ड टू कस्टमर्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 2000, ये वैसा ही है, इसके जैसा ही है। सेल्स इनवॉइस्ड टू कस्टमर्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 06 टोटल 90,000। तो जुलाई टू सितंबर के बीच में कितने इनवॉइसेस भेजे गए? 90,000। Of this, 5,000 related to the goods dispatched on or before 30th of June. Goods dispatched to the customers before 30th September but invoiced on October amounted to 4,000. वापस क्या वो 4,000 ऊपर के 90 का हिस्सा है कि नहीं? 5 है कि नहीं? 5 है, लेकिन 4 नहीं। So basically the division is 85, 5 and 4. This is the note for sales. Okay. 85 का इनवॉइस कब डिस्पैच हुआ पता है आपको? जुलाई टू सितंबर में निकला है। और इन 85, ये 85 का माल भी कब गया होगा आपका पता है? हाँ जी, जुलाई टू सितंबर में निकला होगा। ये 85 का माल भी जुलाई टू सितंबर में निकला है, इनवॉइस भी जुलाई टू सितंबर में निकला है। आर वी द ओनर ऑन 30th September? नो। बट आर द गुड्स इंक्लूडेड इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 30th? Yes. What am I supposed to do? Subtract. But the sales are recorded at CP, na? So I'll have to calculate the CP for this. CP ढूंढना पड़ेगा मेरे को। 25%. It's on cost 25%, तो 100 plus 25, 125. This is 85,000. So into 100 upon 125, 68 आ रहा है। सही बात, 68 आ रहा है। चेक कर लो। चेक 68,000 आ रहा है, प्लीज चेक। ओके, हेलो। 5,000 का क्या सीन है आपका? 5,000 का सीन है। इसका इनवॉइस कब निकला पता है? पहला स्टेटमेंट पढ़ो। व्हेन हैव यू इनवॉइस्ड पूरा 90 का गुड्स? बिटवीन जुलाई टू सितंबर, है कि नहीं? बट इनका माल कब डिस्पैच हुआ पता है? पता है? Dispatch on or before ऑन और बिफोर 30th July. June. Sorry, June. जून में निकल गया है। Sorry. बराबर। हाँ. चलो सोच के बताओ, आर वी द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 30th September? No. नो। यस। No. मे बी। डेफिनेटली नो ना, बिकॉज इनवॉइस जुलाई टू सितंबर के बीच में जा चुका, माल तो उससे भी पहले जा चुका है। हाँ. तो हमारी ओनरशिप तो एक्चुअली जून से ही चली गई है। जैसे माल गया वहां से ओनरशिप। तो अक्टूबर में तो अपना सितंबर 30th को तो सवाल ही नहीं है। वी आर नॉट द ओनर। वेयर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंट्री एज ऑन 30th June, वो भी तो नहीं थे। क्यों पता है आपको? हाँ जी, 30th June से पहले ही जा चुके हैं ना, तो कोई नहीं सकते। तो ये नो है, ये यस था, ये नो है, तो दोनों ही नो इफेक्ट में जाएगा। नोट भी वैसे ही दिखेगा, नोट आता है ना, ओनर भी है स्टॉक में भी है, ओनर भी नहीं है स्टॉक में भी नहीं है, नो इफेक्ट। व्हाट अबाउट दिस 4,000? इसका जो इनवॉइस है ये कब गया बता आपको? पढ़ो। कब गया इसका इनवॉइस पता आपको? अक्टूबर में गया। और इसका फिजिकल स्टॉक कब गया है? सितंबर में गया है। पहला जो भी हुआ उसके हिसाब से सेल और परचेज रिकॉर्ड हो जाता है। सितंबर में माल गया, अक्टूबर में इनवॉइस गया। करेक्ट? चलो सोच के बताओ, आर वी द ओनर एज ऑन 30th September? माफ कर दो। हाँ, sorry. सितंबर में ओनर थे कि नहीं थे 30th September? काहे नहीं थे? फिजिकल स्टॉक जा चुका है, so we have lost the ownership, right? And
Are we the owner on 30th June of these 4,000? Come on, tell me. Are we the owner of this 4,000 on 30th June? 30th September. Why not? You know why not? Because physical stock जा चुका है 30th September से पहले इच ओनरशिप जा चुकी है पहले इच. Got it? And were the goods in physical inventory on 30th? Yes. It was because dispatch कब हुआ इसका अक्टूबर में सितंबर में डिस्पैच हुआ है तो फिजिकल स्टॉक में था तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू सबट्रैक्ट ये भी सेल्स है बट एट सीपी लेना पड़ेगा मेरे को 3000. ओके मुझे बताओ ये आपने फाइव को इसके अंदर क्यों वसूल किया 4 को क्यों नहीं किया. हाँ टोटल इनवॉइसेस अलग से दिया हुआ था वो इनवॉइसेस का हिस्सा हो ही नहीं सकता. हो सकता है क्या हम उन्होंने बोला था माल आगे पीछे डिस्पैच हुआ है ना तो हम उसका हिस्सा पकड़ के चलते. माल आगे पीछे डिस्पैच हुआ तो इसका हिस्सा हो जाता क्योंकि फिर सारे के सारे इनवॉइसेस जुलाई से सितंबर के बीच के माने जाते. यहाँ पे सारे इनवॉइसेस जुलाई से सितंबर के नहीं है. ये जो इनवॉइसेस है ना ये जुलाई से सितंबर के ये वाले बट ये जो इनवॉइस है ये अक्टूबर का. इधर भी ऐसा ही था. ये जो इनवॉइस है ये जुलाई टू सितंबर का ये इनवॉइस अक्टूबर का था. समझा. पढ़ना थोड़ा बारीकी से. ओके हेलो ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर का मतलब क्या पता है. फाइनल क्वार्टर July, August, September. That's your final quarter. 4 quarters in a year. This is September ending. September ending है ना. The 4th quarter is July, August, September. Okay. अब during the final quarters. Credit notes at invoice value of 1,000 had been issued to the customer in respect of the goods returned during that period. तो इन शॉर्ट बोल रहे हैं कि आपने क्रेडिट नोट भेजा मतलब वो क्या हुआ तो सेल्स रिटर्न. आपने माल और क्रेडिट नोट दोनों जुलाई टू सितंबर के बीच में सेंड किया है. वर यू द ओनर ऑन 30th September? 30th September को इन गुड्स के आप ओनर हो कि नहीं. सेल्स रिटर्न हुआ परचेज रिटर्न. सेल्स रिटर्न तो वापस आए हमने नहीं भेजा वापस आए. क्रेडिट नोट भेजा मतलब माल आया. तो बोलो आर वी द ओनर ऑन 30th September? माल आ गया क्वार्टर के बीच में तो हम ओनर है. वेयर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 30th June? व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? ऐड माय सेल्स रिटर्न बट ऐट सीपी अगेन हाउ मच 800 सीपी बोला ना. हो गया. Gross profit earned is 25% of cost. What's the answer? 79. 800. ये दोनों आप क्लब कर सकते हो. ये आप क्लब कर सकते हो ये आप क्लब कर सकते हो. ठीक है. स्टेटमेंट आता है बनाने को छापना है क्वेश्चन कर लेना घर पे. पिछले सम का आया स्टेटमेंट. नोट्स आता है. नोट्स में क्या लिखने का ओनरशिप एंड नॉट. ओके अच्छे से प्रेजेंट करना. वर्किंग नोट चकाचक. ओके शॉर्ट फॉर्म में लिखना एकदम डिसेंटली प्रेजेंट करना और वो स्टेटमेंट. चलो ये कॉपी कर लो. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम लोग. We have done 25, right? We have done 25. We have done 24 also. 24, 25, 22 भी हो चुका होगा. 21 भी हो चुका होगा. सही बात. 20 भी हो गया है ना. है ना. 16 भी हो गया. 15 भी हो गया. सही बात. हो गया सब सर. उसके बाद 10 भी हो गया. उसके बाद 7 भी हो गया और 4 भी हो गया. 7 नहीं हुआ 4 हो गया. अभी 7 नहीं बोला. देखो अब तक हमने 2 वैरायटी सीखी. कितनी
तो सुनो, कौन सी दो वैरायटी सीखे? एक तो हमने सबसे पहले ढूंढा कि स्टॉक का कॉस्ट कैसे ढूंढा जाता है. गाइस, हाउ डू यू अराइव एट स्टॉक का कॉस्ट? तो याद है वो मैंने स्टार्टिंग में बड़ा सा चार्ट बना था, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? Does stock का cost include only the purchase price of cost stock? No, all the expenses incurred on purchase. तो historical मतलब पूरा purchase का cost, non historical मतलब वो अलग ही है, standard और adjusted अपना selling price method वो अलग रखो. Historical cost में items are divided into different items and same items. कौन बोला? हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब अलग वेरिएशन है उसका, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट बताता हूँ. 99% ऑफ द स्टॉक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. उसका परचेज प्राइस, उसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस. उसमें हमने आइटम्स को डिवाइड करा. एक था आप यूनिक आइटम्स बनाते हो. यूनिक आइटम्स मतलब डिफरेंट आइटम्स एंड सिमिलर आइटम्स. डिफरेंट आइटम्स हर एक में आप इंडिविजुअल सबका कॉस्ट ढूंढते हो, याद है? और सिमिलर आइटम के लिए हमने किया फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज. उसका परपेचुअल भी किया, उसका पीरियडिक भी किया. परपेचुअल मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक वैल्यू दिखा रहे हो. पीरियडिक मतलब एंड ऑफ द ईयर काउंट करके ढुड़ुक सीधा मल्टीप्लाई किया, है ना? अर्लीस्ट परचेज प्राइस एंड लेटेस्ट परचेज प्राइस. उसका मेरे को जरा होमवर्क एक डिस्कस करना है, एक पॉइंट. ओके, होमवर्क दिया था ना मैंने एग्जाम उसका एक पार्ट मेरे को डिस्कस करना है, बाद में करता हूँ. इम्पोर्टेंट है वो वाला. अगर नहीं किया तो करके आना, नेक्स्ट लेक्चर करूंगा मैं. अब सुनो, जस्ट रिमाइंड में, वो इम्पोर्टेंट है. अभी that was the first variety. Second variety we saw this one. स्टॉक का ये जो कैलकुलेशन है ना, फिजिकल स्टॉक का कैलकुलेशन, काउंटिंग, ये ईयर एंडिंग पे करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ रीजन से हो नहीं पाता. इसीलिए हम लोग कुछ महीने आगे चले जाते हैं, कुछ दिन आगे या कुछ दिन पीछे कर देते हैं. वहां से हम लोग ईयर एंडिंग का स्टॉक ढूंढ रहे थे इस पार्ट में, सेकेंड टाइप. समझ में आया क्या कर रहे थे? फिजिकल स्टॉक से हम लोग जा रहे थे ओनरशिप स्टॉक पे एज ऑन ईयर. अगला पिछला जो भी है डेटा लेके ट्रांजैक्शन बीच वाले एडलेस करके हम लोग ढूंढ रहे थे. सही बात? आज क्या